نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف، آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان مصر پہنچ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قیادت اور سرپرستی میں 40 سال سے جدا باپ اور بیٹا ان کی آپس میں ملاقات ہو گئی، خاندان مل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے پورے خاندان کو بہت عزت افزائی عطا فرمائی اور خوب رہائش اور سب معاملے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں رہنے لگے۔ اس خاندان کے جب یہ فلسطین سے بیت المقدس سے مصر کی طرف سفر کر کے گیا ہے تو اس کی تعداد 72 تھی، 72 افراد تھے خاندان کے جو کہ مصر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک اس کے بعد زندہ رہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا وقت آ گیا اور آپ نے آخری وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر مجھے یہاں دفن نہیں کرنا، مجھے یہاں پر دفن نہیں کرنا، بلکہ مجھے یہاں سے میرا جو آبائی علاقہ ہے جہاں پر میرے آباء و اجداد کو دفن کیا گیا وہاں پر مجھے دفن کر دینا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ وصیت اس لیے تھی کہ اس مقام پر آپ کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سبھی لوگ وہاں پر مدفون تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زمین کا یہ وہ ٹکڑا تھا کہ جب حضرت اماں سارہ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ ان کو کسی کی زمین میں جا کر دفن کیا جائے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنی رقم سے زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا کہ یہاں پر ہمارے خاندان کا قبرستان بنے گا۔ اس زمین کے ٹکڑے کو خریدنے کے بعد وہاں پر سب سے پہلے حضرت اماں سارہ علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد پھر خاندان کے باقی افراد بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام اور دیگر حضرات کو وہاں پر دفن کر دیا گیا۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے والا تھا تو آپ نے وصیت فرما دی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ مجھے بھی اس مقام پر جا کر دفن کیا جائے۔ چنانچہ جب آپ کا انتقال ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک درخت ہے سال، سین الف سال لام سال، اس کی لکڑی سے تابوت تیار کروایا اور اس تابوت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جسم مبارک کو رکھا گیا اور پھر وہاں سے مصر سے آپ کا جسد خاکی اس کو منتقل کیا گیا فلسطین بیت المقدس کی سرزمین پر، اور یہاں لا کر آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود تشریف لائے اور آ کر تدفین میں شریک ہوئے۔
حضرت یعقوب अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बादशाहत और मिस्र में जो सिलसिला था वो चलता रहा। आखिरकार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी उम्र में जाकर अल्लाह ताला की तरफ बहुत ज़्यादा रुजू कर लिया और दुनिया से बिल्कुल दिल उठता जा रहा था। और फिर आप बार बार अल्लाह ताला की हम्दो सना और शुक्र गुजारी में बहुत ज़्यादा मुतवज्जे रहते थे कि ऐ अल्लाह आपने मुझे सल्तनत अता फरमा दी, ऐ अल्लाह आपने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमा दी। और अल्लाह ताला की हम्दो सना करते और अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह मुझे मुसलमान होने की हालत में वफ़ात देना। और दूसरी दुआ ये करते थे, ऐ अल्लाह मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा देना। अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के नबी हैं और नबी के बेटे हैं और बहुत बड़े नेक आमाल साले सब कुछ सारी सिफ़ात, ज़ाहिर है जब नबी हैं तो सब कुछ ही मिल गया। सब कुछ होने के बावजूद फिर भी वो अल्लाह से ये मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह मुझे इस्लाम की मौत देना। पता क्या चला कि ऐ बंदे, अगर तुझे अल्लाह ने नेक अमाल की तौफीक दे दी, कुरान पाक पढ़ने की तौफीक मिल गई, अल्लाह का शुक्र गुजार बन जा। नमाज पढ़ने की तौफीक मिल गई, अल्लाह का शुक्र गुजार बन जा। ज़िक्र व अज़कार की तौफीक मिल गई, अल्लाह का शुक्र गुजार बन जा। इन नेक अमाल पर मान करके ना बैठ, अल्लाह की रहमत पर मान करके बैठ। हमेशा अल्लाह की रहमत पर मान रख, इन नेक अमाल पर मान कभी ना रखना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी इस आखिरी बात के अंदर, इन दुआओं के अंदर हमें यह समझा रहे हैं, कभी अपने आमाल पर भरोसा मत करना, हमेशा अल्लाह की ज़ात की तरफ मुतवज्जे रहना। अब एक नबी के अमाल और वो अल्लाह की ज़ात की तरफ इतना मुतवज्जे कि क्या मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह इस्लाम की मौत देना। और एक बंदा नमाजी है, बहुत अच्छी बात, कुरान पाक की तिलावत करने वाला, बहुत अच्छी बात, वो अपने अमाल पर भरोसा करके बैठ जाए कि बस जी अब तो मैं ठीक हूँ, सही रास्ते पर, बहुत अच्छी बात है, सही रास्ते पर है, लेकिन उन अमाल पर मान ना करो। अल्लाह की रहमत फिर भी मांगते रहो, फिर भी मोहताज हैं हम, कुछ नहीं हमारे पास फिर भी। और दूसरी क्या मांगा कि या अल्लाह नेक लोगों के साथ मिला दे। नेक लोगों के साथ मिलना, इसका तो कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया सूरतुल फजर के आखिर में कि क्या फरमाया कि नेक लोगों के अंदर शामिल हो जाओ। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिकु वसाक़हु अहद या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। दाखिल हो जाओ मेरे बंदों में, यानी पहले नेक लोगों की सफ़ों में दाखिल हो, फिर जन्नत में दाखिला मिलेगा। फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो आपके लिए एक ताबूत तैयार किया गया और उसके अंदर आपकी जस्ते खाकी को दाखिल कर दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक वसीयत फरमा दी वफ़ात के वक़्त। तकरीबन 120 साल की उम्र थी जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। आपने वसीयत फरमाई कि जब तक तुम लोग मिस्र में हो ठीक है, लेकिन जब तुम मिस्र छोड़कर वापस अपने आबाई इलाके में जाने लगो, मुझे भी साथ ले जाना, मुझे मिस्र में मत छोड़ के जाना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तो वसीयत फरमाई थी, बेटा मुझे वफ़ात के बाद जहाँ दफन ना करना, मुझे डायरेक्ट अपने आबाई इलाके में ले जाना, वहाँ जाकर दफन करना। उनकी वसीयत पर अमल हो गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मुझे यहाँ दफन कर भी दिया जाए, लेकिन उसके बाद फिर मुझे यहाँ से ले जाना। चुनाचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक खूबसूरत पत्थर के ताबूत में डालकर इनको दरियाए नील के एक किनारे पर दफन कर दिया गया।
दरियाए नील के दाएं किनारे पर आपको दफन कर दिया गया। दाएं किनारे पर दफन करने का और दरियाए नील में दफन करने का वाक़या इसलिए पेश आया कि जब आपका इंतकाल हुआ तो मिस्र में लड़ाई तक की नौबत आ गई। क्या वजह बनी भाई? वो सब लोग इस बात के दिलदादा थे और इस बात पर एहतजाज कर रहे थे कि इनकी मैयत को हमारे इलाके में दफन किया जाए ताकि इनकी बरक़ात और रहमतों से हमें भी फ़ायदा हासिल हो। तो सभी लोग ये ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे इलाके में दफन हो, वो कहते हैं हमारे इलाके में दफन हो, वो कहते हैं हमारे इलाके में दफन। चुनांचे फैसला ये किया गया कि दरियाए नील चूंकि पूरे मिस्र से घूम कर गुजरता है, तो क्यों ना हम दरियाए नील के ही एक किनारे पर दफन कर दें, ताकि पानी जब घूम के पूरे मिस्र से गुजरेगा और यहाँ पानी इनके ये जो ताबूत है इनसे टकरा के जाएगा, तो इसकी खैर व बरक़ात और रहमतें पूरे सबको मिलेंगी, पूरे मिस्र वालों को। चुनांचे इस फैसले के मुताबिक आपके ताबूत को वहाँ दफन कर दिया गया दरियाए नील के दाएं किनारे पर। अब दाएं किनारे की तरफ तो जनाब खूबसूरत घास और क्या कुछ और बड़ी खूबसूरतियाँ सब कुछ हो गया, और जो बाएं जाने वाला किनारा है वहाँ खुश्की पैदा हो गई। और बाएं जाने वाले कहते हैं जनाब ये हमारे साथ तो ज्यादती हो गई। तो आपके ताबूत को बाएं जानब दफन कर दिया गया। जब बाएं जानब रखा तो जो दाएं जानब था वो खुश्क हो गया और बाएं जाने वाली जो वो सारे का सारा सब्जा आ गया। तो फिर वो ये इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर दरियाए नील के दरमियान में एक जगह बनाई गई और वहाँ पर आपके जस्ते खाकी को और आपके ताबूत को वहाँ दफन कर दिया गया। अब आपकी वसीयत ये थी कि जब मेरा यहाँ से मिस्र से निकलने लगो तो मुझे साथ ले जाना। सैकड़ों साल के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है और अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया कि ए मेरे प्यारे कलीम, अपनी इस कौम बनी इसराइल को यहाँ से निकाल के ले जाइए और अपने आबाई वतन चले जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब जाने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम मिला कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत थी, लिहाजा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी साथ ले जाओ, इनके ताबूत को ले जाओ साथ। अब ताबूत को तलाश किया जा रहा है, ताबूत नहीं मिल रहा कि कहाँ पर है। एक बिल्कुल बुढ़िया खातून थी, पता चला कि उसको मालूम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे बताओ कि कहाँ पर है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत, उनकी कब्र कहाँ पर है। उसने कहा मैं बताऊंगी, लेकिन दो शर्तें हैं मेरी। एक शर्त यह है कि यहाँ दुनिया में मेरा साथ मत छोड़ना, मुझे अभी साथ लेकर जाना। और दूसरी शर्त यह है कि जन्नत में भी मुझे साथ रखना। ये मेरी दो शर्तें हैं, अगर पूरी करते हो तो ठीक है, मैं बता देती हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी। तो आपने फरमाया ठीक है, ये शर्तें मंजूर हैं, बताइए। उन्होंने बता दिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक किस जगह पे। तो वहाँ से फिर आपका जो ताबूत है वो वहाँ से निकाला गया और निकाल के फिर बनी इसराइल के जो लोग अब मिस्र से जाने लगे। सैकड़ों साल के बाद जब ये मिस्र में दाखिल हुए थे, इनकी तादाद 70 से 72 अफराद थी, और अब ये जब यहाँ से जाने लगे तो इनकी तादाद 6,70,000 अफराद हो गए। अब ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी साथ लेकर यहाँ से चले गए और फिर इन्होंने जाकर उसी जगह पर जहाँ पे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके आबाओ अजदाद को दफन किया गया था, वहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी तदफीन कर दी गई। और एक और अजीब वाक़या उस वक़्त पेश आया जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दफन करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। तो आपके एक भाई थे, उनका नाम था ऐस। आपने पीछे असबाक के अंदर जो मुसलसल असबाक सुनते हैं उनको पता होगा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक जुड़वा भाई था ऐस, आइन या और स्वाद। ये जिस दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दफन करने के लिए वहाँ पर पहुँचे तो इनका भी इंतकाल हो गया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को और हज़रत ये जो इनके भाई थे ऐस, इन दोनों को फिर इकट्ठे ही दफन कर दिया गया।
यानी एक ही वक़्त में दोनों की तदफीन अमल में आई। आज के हमारे सबक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बी कद आतैतनी, रब्बी ए मेरे रब, कद आतैतनी तहकीक दी आपने मुझे, मिनल मुल्की बादशाहत, व अल्लमतनी और सिखाया मुझे, मिन तअवील अहादीसी ख्वाबों की ताबीर का इल्म, फातिरस समावाति वल अर्ज़, असल में है या फातिरस समावाति वल अर्ज़, ए आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, अंत वली, तू ही मेरा कारसाज है, फिर दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में, तवफ़नी मुस्लिमा, मुझे वफ़ात देना इस्लाम की हालत में, ए अल्लाह मुझे इस्लाम की मौत अता फरमा देना, व अलहिकनी बिस्सालिहीन और मुझे मिला देना सालिहीन नेक लोगों के साथ। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या मुकम्मल हो गया। अब अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि ज़ालिका, इसमें इशारा है, और पीछे ये सारा वाक़या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो इतनी तफसील के साथ सामने आया, ये सारा वाक़या मिन अंबाइल गैबी, गैब की ख़बरों में से है, नूहीही इलैका, ऐ मेरे आखिरी पैगंबर, हमने वही की इसकी आपकी तरफ, हमने आपको बताया, आपको पहले तो इस वाक़े का कोई इल्म नहीं था, लिहाजा जब आपको इस वाक़े का इल्म नहीं था, हमने आपको बताया, तो ये कितनी बड़ी दलील है कि आप हमारे नबी हैं। आप ये कुरान पाक खुद नहीं बनाते, ना बना सकते हैं। वमा कुंता लदैहिम, और वमा कुंता और नहीं थे आप, लदैहिम उनके पास, इज़ अजमऊ अमरहुम, जब उन्होंने इजमा कर लिया, अमरहुम अपने काम का, वहुम यमकुरून और वो तदबीरें कर रहे थे। ये इशारा है हज़रत याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो 10 भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक इजमा कर चुके थे कि अब हमने इनको कुएं में के अंदर डालना है, बंद कुएं के अंदर इनको डाल देना है, गुमनाम कुएं में डाल देना है, यानी वो तो इनकी मौत के मुतलाशी थे कि इनको ख़त्म कर दें बस। वहुम यमकुरून और वो इनके खिलाफ तदबीरें कर रहे थे। अल्लाह क्या फरमा रहे, वमा कुंता लदैहिम, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर आप उस वक़्त उनके पास मौजूद नहीं थे। इज़ अजमाऊ अमरहुम, जब उन्होंने इजमा कर लिया अपने काम का, वहुम यमकुरून और वो इनके खिलाफ तदबीरें करते थे। वमा अक्सरुन्नास, और नहीं है अक्सर लोग, वलौ हरस्ता, अगरचे आप हरीस हों, आप कितना ही चाहें, बिमुमिनीन यकीन करने वाले। अब वाक़या यूँ पेश आया था कि सूरह यूसुफ के शुरू में ये बात अर्ज़ की गई थी कि मुशरिकीन मक्का की तरफ से यह फरमाइश आई थी कि अगर आप हमारे सवालों का जवाब दे देंगे तो हम आपको बात मान लेंगे। सवाल क्या है, आप बताइए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद और ये सारा ख़ानदान, ये तो फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस में आबाद था, मिस्र कैसे पहुँच गया, ये सवाल था। सारे सवाल का जवाब बड़ी तफसील के साथ आ गया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे कि मेरे जवाब तो इनको मिल गया, अब इन सब लोगों को चाहिए कि ये कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाएं। अल्लाह ने फरमाया वमा अक्सरुन्नास, और नहीं है अक्सर लोग, बिमुमिनीन ईमान लाने वाले, वलौ हरस्ता, अगरचे आप कितना ही इनके बारे में चाहें, वलौ हरस्ता अगर आप कितना ही चाहें, हरीस, हरीस का माना होता है चाहना, अगर आप कितना ही चाहें, बिमुमिनीन ये ईमान लाने वाले नहीं। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अजरिन, और नहीं है आप इनसे सवाल करते, मिन अजरिन किसी अजर का, किसी बदले का, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, नहीं है वो मगर नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए। ये कुरान इसलिए नहीं इनको सुनाया जा रहा कि इनसे कोई पैसे लेने हैं, इनसे कोई तनख्वाह और वजीफ़ा लेना है, बल्कि ये कुरान तो एक नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए, इसलिए इनको सुनाया जा रहा है ताकि इनको नसीहत हासिल हो जाए। तो अल्लाह ताला ने आखिर में ये बात हमें समझा दी कि ये कुरान पाक हमने नसीहत के लिए उतारा है, और ये सारा वाक़या भी अल्लाह ताला ने हमारे सामने इसलिए रखा कि इसके अंदर भी तुम्हारे लिए बहुत सी इबरत की चीज़ें हैं और बहुत की नसीहत की चीज़ें हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।